Assalamu alaikum, dear students. Welcome to this study class. I think this is first time that in year 2021 we are here again, but this time with a different news that we in class 11th and 12th have shifted from your already existing textbooks Chinar 1 and Chinar 2. Now it's not that. It's actually now we have shifted to Central Board of School Education, and this year we are going to teach, it's Flamingo and Vistos in class 12, and inshallah when we will come to class 11th we'll talk about that. Today we will be focusing our attention on these new two textbooks. This is core, right? This is textbook for this class 12th and core course. Okay, so we'll be doing one of very important lessons. Inshallah, we hope that for our students and teachers who are watching back from home, वो सब बच्चे भी बड़े प्यार से आराम से आज का क्लास देखिए और एंजॉय कीजिए. इसमें मैं बहुत सारी बातें टेक्निक्स वगैरह आपको समझाऊंगा और मुझे लगा एज फार एज आई अंडरस्टैंड बहुत ही इजी बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत सारे it is going to teach you a lot of very important things, nitty-gritty, nuances of English language, the basic skills, right? Some genres of language will be talk about all these things, right? So far as this today's class is concerned, right? तो आज हम आपके साथ जो है will be having this topic, the interview, okay? And it is by Christopher Sylvester, right? It's by Christopher Sylvester, chapter number 7 in Flamingo, right? So it's a non-fictional prose lesson. तो इसी पे बात आज करेंगे, ठीक है? तो this is in two parts actually. So in first part we have some observations of some of the great celebrities of the world regarding interviews. दुनिया के बहुत ही मशहूर celebrities इंटरव्यूज़ के बारे में क्या तासुर है उनका, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इंटरव्यूज़, उनके ख्यालात क्या है इंटरव्यूज़ के बारे में. तो मैं आपको आई विल ट्राई टू एक्वेंट यू विद ऑल दोज वर्ड्स. देन इन सेकंड पार्ट वी आर हैविंग ए प्रैक्टिकल इंटरव्यू बिटवीन टू पीपल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इंशाल्लाह. आई होप कि ये जो हमारी आज क्लास जाएगी इट विल बी इन टू पार्ट्स, राइट? इन पार्ट वन वी विल बी dealing with the reactions, the observations, the comments of celebrities all around the world about interviews, right? And in second part, we will be having a small interview between two people, right? So let's go to the introductory part of first lesson. I told you that the name of the lesson is the interview, okay? And this lesson is written by Christopher Sylvester, okay? And a brief intro about this person who was Sylvester. So dear students, this chapter, the whole chapter is an excerpt, right, from one of the famous books of this Christopher Sylvester. And what was the name of that very book? It was the Penguin Book of Interviews, and it's edited by Christopher Sylvester. राइट. सो डाउन द एजेस, जब तक उन्होंने जो लास्ट टाइम पे अभी तक वैसे सिल्वेस्टर ही इज अलाइव, तो उन्होंने अपने टाइम तक व्हेन दिस बुक वाज रिटन, तो उस टाइम तक जितने भी इंटरव्यूज थे उनका एक एडिटेड वर्जन उन्होंने बुक फॉर्म में लाया है. एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, राइट? तो ये जो सिल्वेस्टर थे, कौन है ये? ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री at Peterson, Cambridge, the UK. He is a man from United Kingdom, right? So very famous. In his introduction in your textbook, you will come to know that he was a regular writer for Private Eye, and he has also written for Vanity Fair. Both of these are two important magazines, right? Magazines. One, for example, if you go to this Private Eye, it is from United Kingdom. It gets published. It's being published by United Kingdom. And then if you go to Vanity Fair,
It is from United States, one of the famous magazines, right? So he talks about that. And this Christopher Sylvester actually, this is his introduction, that he how much impact he has actually on things. So then this coming to down to this, for example, today's lesson, if you see on this very let us call it as a flashcard, here you have two people, right? This is actually the interview between the two people, right? So we'll talk about that. The second part is about this. And now let us see what is in part first. Okay, in part first we have some I told you we have some reactions of people, right? So mixed reactions from people, will come to know about that. And then in second part there is an interview between Umberto Eco, a professor in Bologna in Italy, and the interviewer is Mukund Padmanabhan. He is editor of The Hindu, a leading daily newspaper in India. Okay, he is actually the interviewer, and the interviewee is, who is interviewee? It is Umberto Eco, right? So here we have the pictures of the two people. Here you have Umberto Eco, and here it is Mukund Padmanabhan. Okay, so dear students, before going to actual business में जाने से पहले, सीधे क्लास के अंदर जाने से पहले क्या करेंगे हम? Yes, we will go to scaffolding, जो आगे आपको आने वाले इस पूरे लेसन में फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू, जो मैंने बोला कि इट्स एन एक्सर्प्ट एंड इसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें कुछ वर्ड्स जो नए वर्ड्स, आई एक्सपेक्ट दैट दीज आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स, एंड इन वर्ड्स को जब तक कि आप फ्रेंड्स न बनाएंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स सिटिंग बैक एट होम इन द टाइम्स ऑफ पैंडमिक. बहुत ज़रूरी है कि आप जो नए वर्ड्स, आई एक्सपेक्ट कि ये पहली बार आप इन वर्ड्स को देख रहे हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे तो इनका पर्टिकुलरली यू नो कि इन अ पर्टिकुलर लेसन a word has some special meaning related to that lesson only. Sometimes it is also possible कि आप डिक्शनरी में जाते हैं, वर्ड के सामने बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत सारे मीनिंग होती है एक ही वर्ड की, बट ये याद रखना चाहिए when you go to a textbook and you find a word, don't go to the first dictionary entry and feel that okay ये इसकी मीनिंग होगी. No, you have to feel, you have to see whether this is the context of this word in the lesson. क्या लेसन में भी यही मीनिंग है? तो आपको पूरे सारी मीनिंग्स देखने पड़ेंगे डिक्शनरी में, देन आपको वो जो आपकी रेलेवेंट मीनिंग वहाँ पे टेक्स्ट में आती है उसको आपने लेना होगा, then you will be able to understand the meaning of that word there in the text, right? So that's why कि आप टेक्स्ट बुक में देखते हो most of the times we write glossary. तो glossary में क्या करते हैं हम, जब बुक में हम मीनिंग देते हैं तो वहाँ पे हम वही कोशिश करते हैं as experts, as teachers कि आपको वही मीनिंग यहाँ पे वर्ड की बता दें that is required in the text, है ना? Otherwise you will find so many responses or meanings of that word in a dictionary. That's why कि you have to be very professional when you use a dictionary. You must know that कि यार मुझे कौन सी meaning चाहिए यहाँ पे. Yes, that's it. So कुछ words यहाँ पे हैं and कुछ words मेरे सामने भी. So let us try to see what these words tell us. उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा brief कराऊंगा lesson का, उसके बाद inshallah we'll talk about theme, right? Then we will go to assessment part. Then I will talk about, I will teach you inshallah here how to go for a reading comprehension, है ना? तो reading comprehension भी करेंगे हम यहाँ ही इंशाल्लाह, और यहीं पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ assessment, and you know that under new education policy 2020 we talk about school based assessment. School based assessment is 360 degree where आपके जो friends वहाँ पे घर में बैठे हैं एक दूसरे को भी आप जब मेरे लेसन के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आई, you can ask questions to each other. That's peer
असेसमेंट, राइट। तो आप एक दूसरे को, तो इसी तरह टीचर असेसमेंट, मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको आंसर करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट, अब अपने आप को लेवल देखेंगे। जब आपने ये लेसन डिलीवर करने से पहले आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इस टेक्स्ट बुक के बारे में थी, फ्लेमिंगो के बारे में तो क्या थी, या इस लेसन के बारे में, तो अब आप क्या समझ पाए, तो यू विल पुट दोज वर्ड्स डाउन। तो क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि थ्रू माई ओन असेसमेंट हाउ मच आई हैव इम्प्रूव्ड, थ्रू माई पीयर असेसमेंट, मेरे फ्रेंड्स या मेरे कलीग्स फ़ोन पे, मेरे भाई बहन वो मुझे पूछ रहे, तो आई एम रेस्पॉन्डिंग देम, क्या क्या चीज़ मुझे समझ आई, या यू आर रेस्पॉन्डिंग टू माई क्वेश्चंस। सो दिस इज़ ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कि हम हर जगह पे वी शुड बी एबल टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज एंड क्वेश्चंस जो इस लेसन के रिगार्डिंग हमें दिए जाएंगे। एंड रिमेंबर दैट जब हम व्हेन इंग्लिश इज टॉट, देखिए दिस इज़ माई कंपल्सन, आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली जो कहीं पे कंट्री साइड में बहुत दूर बैठे हैं, दैट्स वाई कि एट टाइम्स आई स्विच माई कोड टू दिस उर्दू, राइट, एंड sometimes I speak English. My focus must be that I should keep on speaking in English. Why? Because this is my target language. My idea is to inculcate the basic skill, listening, reading, writing, है ना, all the 4 basics, LS, R, W in my learners. आपको उस पे control, and you should be able to do that. बट एट द सेम टाइम आई नो कि आप कहाँ कहाँ पे बैठे हैं, आप किन हालात में बैठे हैं। हो सकता है कि कहीं पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकता है कहीं पे भी टेक्स्ट बुक ना हो, तो दैट्स वाई कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको उर्दू में भी ये समझाने की कोशिश करूँगा, एंड एट द सेम टाइम आई विल स्पीक इंग्लिश एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन इंग्लिश, राइट। गोइंग टू सम ऑफ द वर्ड्स आई टोल्ड यू कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमन प्लेस of, you will see a word here in this first part of interview, the interview which is written by Christopher Sylvester, I told you. So commonplace, that means not usual, right. Then extravagant means excessive, बहुत ज़्यादा। तो despise, right, means अगर आप किसी चीज़ से नफरत करते हो, hate, okay. Unwarranted है ना, कोई unwarranted चीज़ उसको कहेंगे that's unauthorized, that's unjust, जो आपको लगता है ये ठीक नहीं है। तो इंट्रूजन, तो मीन्स इंटरवेंशन, जब आप अननेसेसरी कोई मुदाखलत करते हैं, राइट। तो दैट्स इट, ओके। सो इंट्रूजन, एंड देन यस यू हैव लॉयनाइज, very important, है ना। I think this is a different word, most probably it's coming first time, so very important। इसमें इस पे question भी हो सकता है at the end of the day, I'll be asking you। so lionize, give a lot of public attention, किसी को बहुत ज़्यादा attention देना, focus किसी इंसान पे होना, तो उसको important बनाना, उसकी size से making someone bigger than his own size, है ना, scaling up, तो lionize कहेंगे। तो petitioners, सो पेटिशनर्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो आपसे कुछ चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं, या आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई आपके साथ करना चाहते हैं। सो दे आर कॉल्ड दिस पेटिशनर्स। देन कंडेमनेटरी, है ना। कंडेमनेटरी मीन्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, जब आपको बिल्कुल नाराज़गी हो कि यार ये चीज़ मुझे, आई डोंट लाइक दिस, सो दैट्स कंडेमनेटरी, ओके। देन another word, wrecked, W-R-E-C-K-E-D, wrecked means destroyed or severely damaged, तो जो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई हो, right. then assault, तो किसी के ऊपर हमला करना, that is assault, right, A-S-S-A-U-L-T। then vile, extremely unpleasant, जो हमें आपको बिल्कुल ना खुशगवार गुजरे, आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, राइट। परपिट्रेटेड मीन्स कमिटेड, आपने कोई काम किया, परफॉर्म किया, है ना। एंड देन ओडियल, ओडियल मीन्स हाँ, ए वेरी अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस, जो बिल्कुल एक ऐसा काम बहुत देर तक आप कर रहे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है, ओके, दैट इज दिस ओडियल। एंड देन सर्विसेबल, ठीक है ना, तो दैट मीन्स यूजेबल, सर्विसेबल मीन्स यूजेबल, फुलफिलिंग इट्स फंक्शन। एंड देन विविड, V-I-V-I-D, सो पावरफुल फीलिंग्स, प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग्स, वेरी क्लियर, है ना, images in the mind, clear images in the mind. Then
कंटेम्पोरेरीज। तो कंटेम्प्रेरीज मीन्स जो आपके दाएं बाएं 12th के स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हैं तो वो आपके कंटेम्प्रेरीज हो गए। या आप यहाँ पे हो, दूसरा कोई दिल्ली में कहीं और somewhere else, so they are your contemporaries doing the same thing at the same time, right? So a person or thing living existing at the same time as another, right? Then unprecedented. Okay, so this is today when I'm live on TV and you are watching my class. This is an unprecedented situation because of COVID-19. Otherwise we used to be in a classroom, है ना, in the proximity of a classroom where you will ask me questions, I will respond to them. But this is a kind of asynchronous kind of thing. मैं तो अभी क्लास दिया and you, if you want to ask me a question, I will put my email ID, my cell number here, right, at the end of the class. तो asynchronous way हो गया यही कि आप मेरा क्लास देखेंगे, जहाँ पर भी, wherever you have a question, you can respond to that. You can ask me later on through my mail, through my WhatsApp. I can respond to that. There is no issue in that, right? So these were some of the words जो मुझे लगा कि इस लेसन में हैं कुछ वर्ड्स, है ना, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ओके, तो इफ वी गो टू द लेसन नाउ, तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगा टू रीड इट आउट फॉर यू। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि वर्ड्स तो मैंने ऑलरेडी दिए। आई होप कि आपने वर्ड्स लिखे होंगे। Is that okay? So let's go to the lesson part. तो लेसन पार्ट पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यही बात है कि इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं ब्रीफ लिए आपको बताना चाहूँगा कि पहले इन्हीं चीज़ों पे फोकस भी होगा। हाँ, मैं वहाँ जाने से पहले एक दो चीज़ें आपके साथ करना चाहूँगा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द लेसन। जब ये क्लास ख़त्म होगा तो यहीं पर आप वहाँ कॉपी वगैरह रखेंगे तो मुझे आप बताएंगे। जैसे यहाँ पे एक मशहूर ये देखिए, ठीक है ना, तो इट्स लुइस कैरल, इट इज़ लुइस कैरल। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द लेसन कि लुइस कैरल की फीलिंग्स, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ लुइस कैरल, ओके, अबाउट इंटरव्यूज। ये मुझे एट द एंड ऑफ द डे, जब क्लास खत्म होगा, आपको मुझे बोलना पड़ेगा लुइस कैरल की फीलिंग्स क्या थी। इज दैट ओके? नाइस। एंड देन you will tell me about, for example, Rudyard Kipling. Okay, yeah, Rudyard Kipling. You must tell me कि Rudyard Kipling के comments, के words, what were they about interviews? What was his reaction about interviews? You must tell me that, right? Fine. And then Saul Bellow, right? Another very important writer of that era. So what were his feelings about interviews? Okay, and V.S. Naipaul, a cosmopolitan writer you must be knowing. V.S. Naipaul, okay. तो ये मान लीजिए these are, ये आपके लिए मैं सिंपल 4 क्वेश्चंस रख रहा हूं। जब मेरा लेसन खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपसे पूछूंगा, भाई बताओ लुइस कैरल की फीलिंग्स क्या थी। मैं I will tell you what did Rudyard Kipling say, okay, about interviews. I'll tell you what were the feelings of Saul Bellow. Fine. H.G. Wells, he's also there. You must tell me about that. And then Caroline, Rudyard Kipling ki wife, she has something to say. You need to tell me that. So please write down these things. Okay. अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ पहले करूँगा, उसके बाद I will read one of the extracts, फिर थोड़ा सा I'll try to explain things to you, right? Then we'll move to assessment area, and then we will come to some reading comprehension part, and that way we will come to. So this is my plan today. Fine. So first of all, तो I hope कि थोड़ा सा brief intro आपको लेसन के बारे में I gave you a brief introduction about what this lesson is all about. I told you who was Christopher Sylvester, and then I told you briefly the introduction of this the interview, non-fictional prose extract in your this textbook of class 12 Flamengo, है ना, that I have told you. Now see,
I told you there were some mixed responses of people towards interviews, right? If you go V.S. Naipaul says that he feels wounded. I'm just giving you a brief, then we will go to the text, right? So one word, he says that I feel wounded if somebody asks me, if somebody interviews me, right? He feels wounded, very strange, a negative feeling, a negative response. Okay, then if you go to Lewis Carroll, what is his feeling? He says, oh, it's horror of being, he feels horror. He feels scared, and he says that I don't like to be lionized. I told you. Yeah. I don't like that I get full public attention. Then in other words means he doesn't want to be a celebrity. He don't want to give these autographs to people. He don't want that, okay, I'm treated somebody very special. He despises this, he dislikes this. So that was Lewis Carroll's approach towards interviews. Then if you go to Rudyard Kipling, in this part, first part, he will tell you, oh no, it's a crime, it's an assault, right? Or physically मुझे मार रहे हो अगर आप, if you are asking me for an interview. Very strange. These are the opinions. Then if you go to Saul Bellow, do you know what he says? My God, it's very, his strong reservations with it. He said that you are keeping your thumb on this windpipe. That means almost you're choking me. That means I feel breathless. In other words, he says that I don't want to come before an interviewer. I don't want to be interviewed, right? So these are some basic reservations, reactions of people, right? So yes, I think that, okay, for example, I will read just one part, then we will come explain these points in detail, because this is the first part of the lesson and we need to explain it. For example, yes, so the writer begins, if we go to the major territory of the lesson. This is, if you go to Flamingo, for example, I would love to write this for you. He says, since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Okay, today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. Yeah, some of them repeatedly. So it's hardly surprising. That opinions of the interview, of its functions, methods of an interview, and merits of an interview vary considerably. So in other words, what you just saw, that this is the beginning. He says that definitely जब से interview को coin किया गया, and he says that when this book was written, उससे पहले 130 years ago, this thing interview started to happen. Okay? जब ये 130 years ago interviews तब से हुए, तो पता नहीं कितने हजारों celebrities के interviews हुए होंगे. That's why कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर यहाँ पे कहता है कि that's why कि आज के ज़माने today you will find people having views against interviews and having views in favor of interviews. है ना? So you will come to know about that. Then some might make quite extravagant claim for it as being in its highest form a source of truth and in respects an art. Now see, some glaring positive responses. तो कुछ लोगों का ये ख्याल है, they say that interviews are the only source of truth. जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो सच्चाई सामने आती है लोगों की. Then there is how interviews are very important, right? Source of truth. And at the same time they say it's an art. यानी कि वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, किसकी? इंटरव्यू की जो प्रैक्टिस करते हैं, जो यानी कि इंटरव्यूअर्स, तो उनका क्या है? Yes, they feel it's an art. ये कोई आसान काम नहीं है किसी का इंटरव्यू लेना. Okay, so this is another opinion. Now
others usually, now सबसे ज़्यादा अब देखते हैं, others usually celebrities who see themselves, who see as it is victims. तो ये देखिए, सेलिब्रिटीज़ क्या समझते हैं, वो अपने आप को समझते हैं यार हम मजबूर हैं, हाँ हम पे ये जुल्म हो रहा है, हम इसके विक्टिम्स हैं कि हमसे इंटरव्यू लिया जाता है, हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Then what is their opinion now? Might despise the interview as an unwarranted intrusion into their life. तो वो ये कहते हैं कि यार ये गैर ज़रूरी unauthorized मुदाखलत है हमारी ज़िंदगी में. You are intervening. You are putting us in difficult situation. We don't like this. ये है celebrities के जो इब्तदाई reactions. So we will go one by one. जो मैंने अभी brief में बोला था, तो please keep these 4 things in mind, because at the end, I'll be asking about this. So then they say or feel that it somehow diminishes them. Just, ये बड़ा interesting point यहाँ पे Christopher Sylvester. This is very interesting from Christopher Sylvester. He says that just as in some primitive culture, it's believed that if one takes a photograph, a portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. तो primitive इब्तदाई कुछ societies में, civilizations में, it is believed कि वो photograph उठाने, वो बिल्कुल they will not allow you कि आप उनका photo लें. वो क्या समझते हैं कि हमारा जो original soul है, you are stealing that out. वो हमारा सोल ही हमसे छीन लेते हो. अब हमारी जो अपना तशक्कुस पर्सनालिटी एज आई एग्जिस्ट, यू आर टेकिंग दैट अवे व्हेन यू आर टेकिंग माय फोटोग्राफ. सो दे डोंट इवन अलाउ. दीस आर सम ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटीज, दे डोंट अलाउ इट. द सेम इज द केस विद सम ऑफ द सेलिब्रिटीज. वो ऐसा ही फील करते हैं जब हमारा कोई इंटरव्यू लेता है, तो हमारे जो अंदर, दैट्स समटाइम्स इट्स वेरी ट्रू. विल कम टू दैट ऑल्सो, विल कम टू दैट. सो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इंटरव्यू के थ्रू जो लोग हैं, यानी सेलिब्रिटीज, दे फील दैट दे गेट टेरिबली दे गेट एक्सपोज्ड टू द आउटर वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे V.S. नायपॉल की बात, जो दैट आई वाज टेलिंग, आई टोल्ड यू दैट ही वाज अ कॉस्मोपॉलिटन राइटर, a world famous writer, and even he is a Nobel laureate. 2001 में उनको literature पे he has got a prize as well. He feels, now see, that some people are wounded by interview and lose a part of themselves. वो सीधी सी बात अपने बारे में ही कहता है कि यार अगर मुझे इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा, इफ आई सिट इन एन इंटरव्यू व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, इन अदर वर्ड्स, यू नो दैट इंटरव्यूअर्स आर पावरफुल, दे हैव इन्फ्लुएंस, दे आस्क क्वेश्चंस. तो वो कहता है कि यार मुझे लग रहा है ऐसे कि जब वो क्वेश्चन शूट करता है, आई फील वांटेड, क्योंकि मैं अपने आप को जख्मी महसूस करता हूं कि यार मैं हो गया इन क्वेश्चन से. सो ही डजंट लाइक इट, राइट? कीप दिस इन माइंड. देन इफ यू कम टू लुइस कैरल, do you know Lewis Carroll? Yeah, the father of Alice in Wonderland. You are absolutely right. Lower classes में, yes, Alice in Wonderland class 8, I suppose, or maybe it is now in class lower classes somewhere. I have seen it, but in previous times when I was a student, I have studied this Alice in Wonderland, I think in class 9th. Today it is in 5th, 6th, 7th, 8th, right? Okay, no issues. So this very, very famous, right? This great book was written by this gentleman, Lewis Carroll. Now, what is his opinion about interviews? Let us see. He says, a just horror of the interviewer. Interview से ही डरता है. कहता है कि यार, don't tell me. Interview के बारे में बोलो ही नहीं. I don't like this. And then he says, and he never consented to be interviewed. तो जब भी उससे पूछा गया, please come, एक इंटरव्यू आपका लेना है, he never consented. उसने बोला नहीं मुझे नहीं देना. Even आप देखिए आगे what he says. He says he feels, मैंने अभी वो लाइन यूज भी की, he is the man. He says I don't want to be lionized. मुझे यार ये सेलिब्रिटी बनने का, prominent person बनने का, बहुत ही important person, I don't want to be like that. I don't want to live that life. And आप भी अच्छे से जानते हो, you watch TV and other things, I think we must support rather Lewis Carroll in the matter that VIPs की जिंदगी बड़ी tough होती है फिर, So that is the matter. Then
एंड ही सेज ही एड्स दैट मुझे मज़ा आता है जब मैं पैटिशनर्स अपने एक्वेंटेंसेस रिलेशंस को बिल्कुल बाहर रखता हूँ. आई डोंट अलाउ देम टू कम टू मी एंड ही इंजॉयज दैट सिचुएशन कि यार कम से कम मैं बच गया, मैं आराम से बैठा हूँ, नोबडी इज़ डिस्टर्बिंग मी, मेरी पीसफुल लाइफ है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट अपने पीस से नहीं होता हूँ. सो ही फील्स सेटिस्फाइड बाय साइलेंसिंग हिज ऑल दीज पैटिशनर्स एक्वेंटेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. And then, yes, another very, very important, Rudyard Kipling. Now see what he says about interviews. Rudyard Kipling says, yes, Rudyard Kipling says, an even more condemnatory attitude towards the interview. उसका तो बहुत ही ज़्यादा serious जो है condemnatory, जो मैंने अभी आपको बताया, express strong disapproval, बहुत ही ज़्यादा strong disapproval उनका है interviews के साथ. He says, no, I don't like interviews at all. Why? Because अब देखिए उनका क्या है, अब वो खुद नहीं, उसकी वाइफ, हाँ कैरोलिन, शी राइट्स इन अ डायरी. कैरोलिन ने अपने डायरी में लिख के रखा है अबाउट रुडयार्ड किपलिंग. क्या लिखा है? शी राइट्स, क्या कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने? व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड? बिकॉज इट्स इमोरल, इट्स अ क्राइम, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. It's cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स हैं रुडयार्ड किपलिंग के, जो कि कैरोलिन उसकी वाइफ ने अपने डायरी में लिख के रखे थे. दीज आर द वर्ड्स कि यार ये एक जुर्म है, इट्स अ क्राइम, इट्स अगेंस्ट एन ऑफेंस. आप एक इंसान के खिलाफ एक जुर्म करते हो, तो इसके लिए जब आप ये करते हो, इवन ही गोज टू नेक्स्ट लेवल एंड सेज, आप ये मान लीजिए आपने उसको जिस्मानी तौर थप्पड़ मारा, आपने फिजिकली मारा उसको, एज अ फिजिकल असॉल्ट, राइट. सो ही सेज दैट ये बिल्कुल मॉरली वर्थलेस है. वाइल, ही यूज्ड द वर्ड वाइल हियर, कि वाइल है. एंड देन ही सेज, ही एड्स दैट इट्स अ कॉर्डली एक्ट. एंड इवन दो चीजें, ना इंटरव्यू किसी से पूछना चाहिए, ही सेज, किसी को नहीं बोलना चाहिए यार तू इंटरव्यू दे. एंड वो कहता है मॉरली सबसे डाउन वो इंसान है वन हु गोज एंड गिव्स एन इंटरव्यू. My God, these are the words of Rudyard Kipling. But ironically, I will tell you, you know what happened later? This man has, such is the height of his hate, despise against interviews. Now see what he does. Later on, yet Kipling himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. ये सारा बोलने के बाद कुछ सालों पहले ही रुडयार्ड किपलिंग वाज द पर्सन मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था. Now that's very interesting, right? तो आप बोलते sometimes है ना, your statements are sometimes put into question marks. There's big question marks against your statement. Whatever you say, don't do that. तो ये इनकी बात थी. तो आगे चलते हैं. Now, if you go to H.G. Wells का देखिए आप, he says that, oh yes, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ये याद रखिए आप, उनका एक एक्सप्रेशन, उनका एक फ्रेज है, ही सेज इट इंटरव्यूइंग ओडियल, इट इज इंटरव्यूइंग ओडियल. तो ये उनके लिए बहुत परेशानी की बात है, यानी कि इट इज सीवियर, दैट डिसरेस्पेक्टिंग एक्सपीरियंस उनके लिए अच्छा नहीं लगता था उनको भी, तो वो नहीं चाहते थे टू बी इंटरव्यूड. बट फिर वो उनकी बात सुनिए. Was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. Wells जब पहले खुद जब when you talk him about interviews he will say that it is an ordeal, and then see he is the man. इतने सारे इंटरव्यूज दिए कि बात ही नहीं, और इवन इतना ही नहीं, इंटरव्यूड सिविल ओकेजन्स खुद ये उनसे हुआ. एंड देन यस इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन. तो उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन, you know, a Russian, है ना? Yes, a Russian who was he was a Russian revolutionary, you know it well, and an active political organizer. तो स्टालिन, तो उनका इंटरव्यू लिया था. Again a contradiction, right? Coming down, if you talk about Saul Bellow, another very important playwright, है ना? He was also a Nobel Prize he has got in 1976, right? So Saul Bellow says, several occasions, he says that it is keeping
थंब प्रिंट्स ऑन वंस विंड पाइप। आप किसी के विंड पाइप पे थंब प्रिंट्स रख रहे हो, अगर आप उसे इंटरव्यू ले रहे हो, दिस इज हिज ओपिनियन, येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू। तो ये सारे आपने अब तक जो देखा, दीज वर ऑल व्हाट, यस ड्रॉबैक्स ही देखिए आपने। रुडयार्ड किपलिंग को ले लें आप, उनकी वाइफ कैरोलिन की बातों को देखें, एल वेल्स को देखें, है ना, लुइस कैरल को देखा आपने, वीएस नाइपाल को देखा। ऑल ऑफ दीज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस, नेगेटिव थिंग्स अबाउट इंटरव्यूज। एंड देन सॉल बेलो की अभी हमने बात की, राइट। तो सॉल बेलो का यही था कि इतने मशहूर राइटर, उन्होंने कहा कि यार ये इट इज़ कीपिंग योर दिस थंब ऑन माई विंड पाइप। सो बहुत टफ सिचुएशन को उन्होंने ले लिया है ये सब कहने के बाद। सो अगर ये सारी चीज़ें देखने के बाद, नाउ सी, yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication। तो अब यहाँ पे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि यार इतनी सारी नेगेटिव वेव्स के बाद इंटरव्यू इज द सुप्रीम source of communication. It is a sensible source of communication. It's a medium of communication. इसी से हमें पता चलता है कि यार लोगों के बारे में, है ना, ये they give, इतना ही नहीं, these interviews give us vivid impressions of contemporaries, है ना, दे कम अस थ्रू इंटरव्यूज। यानी कि हमारे जो कंटेम्प्रेरी, जैसे अभी लुइस कैरल के साथ साथ ये सारे राइटर्स, वी गेट देयर वेव्स इन इंटरव्यूज के थ्रू, जब इन्होंने दिए होंगे, इनका जो ओरिजिनल सेल्फ सामने आ गया, एक कम्युनिकेशन ओपन हो गई, एंड वी कैन नो दिस पीपल। समटाइम्स इट वाज इंस्पिरेशन, समटाइम्स ये भी पता चला कि ये चीज़ करें तो इट कैन लीड अस टू दिस वे, or if you don't do this, it can lead us to that way, है ना। So this is how all this, why interviews are important, right? So यही पॉइंट हम याद रखेंगे। इवन इतना ही नहीं, इंटरव्यूअर के बारे में, while interviewing, who is an interviewer, everything of moment reaches us through one man asking questions. So again, interviewer जो है, he is the most powerful person, बिकॉज उसी के थ्रू हमें सारी बातें हमारे तक पहुंचती हैं। होल्ड्स एन अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो वही उसी के पास पावर होता है, उसी के पास इन्फ्लुएंस होता है। आई बात समझ। सो ये थी डिफरेंट राइटर्स, ये पहला पार्ट था इस पूरे लेसन का, राइट। तो हाँ, जो हमने अभी वी हैव गॉन थ्रू, है ना, तो वी रेड इट, तो वी कैम टू नो द फीलिंग्स, the reactions, the understanding of people at different times regarding interviews, right? तो अब हम क्या करेंगे? Let us go and see the theme of this very part. तो हमें क्या जो मैसेज मिला, what's that? ठीक है ना। हाँ, देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं जो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज डिजिटल वर्ल्ड। You all know that आज के ज़माने में we all, what can we do? We all know that we have our own point of views. When I read this excerpt, what I understood is that every person has a right to his or her privacy, right? तो ये हमें मैसेज पता चला, क्योंकि वी हैव सीन द रिएक्शंस ऑफ ग्रेट सेलिब्रिटीज। तो हम ये मैसेज यहाँ से हमने लिया कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू हिज और हर privacy, right? Interviews sometimes embarrass celebrities with very personal questions. So that means कि we have a message here कि जब भी interview as a genre आपको जब अपने सीखेंगे, अगले डेफिनेटली जो सेकंड पार्ट होगा तो उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि इंटरव्यूज़ में कैसे हम कैसे करते हैं इंटरव्यू, क्या क्या उसमें टेक्निक्स हैं, वी विल कम टू दैट। सो अनदर इम्पॉर्टेंट जो थीम यहाँ पे है वो ये है कि वी लर्न दैट wrong, humiliating or personal questions should not be asked during an interview. It is not fair to not mention any embarrassing story connecting to the past of the person we are interviewing. तो किसी भी इंसान के पास्ट, किसी भी इंसान
के गुजरे हुए ज़िंदगी के बारे में ड्यूरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, राइट? दैट इज़ हिज पर्सनल थिंग एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट इज़ एम्बेरसिंग एंड दैट इज़ ह्यूमिलिएटिंग। ये हमने दूसरी चीज़ सीखी है ना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट, it is strongly advised that the private life of a public figure should not be considered public. and प्राइवेट लाइफ को पब्लिक नहीं बनाना चाहिए, एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ये उनकी वो बात थी वगैरह। इट इज डेवास्टेटिंग, ये बर्बाद करने के लायक है, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। फॉर देम टू रिकवर इफ देयर प्राइवेट लाइफ इज ब्रॉट टू द पब्लिक डोमेन, क्योंकि किसी की प्राइवेट लाइफ को जब हम पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो उस इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। इवन इट इफेक्ट्स हिज फैमिली, उसकी फैमिली रिलेशंस जो है वो ख़त्म हो सकती है। उस ही गेट्स सोशली स्टैग्मेटाइज्ड, है ना, समाजी तौर वो स्टैग्मेटाइज हो सकता है। तो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंटरव्यू में हमने ये मैसेज ली, ये थीम लिया कि प्राइवेट चीज़ों को, जो कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, they should not be asked during interviews because they are humiliating, right? But at the same time हमने ये भी मैसेज हमने सीखी कि is the most powerful or supreme medium of communication, and इसके थ्रू ही we come to know about the developments, the inspirational stories of people, उनके बारे में हमें पता चलता है और हम हमारे लिए एक प्रेरणा, हमारे लिए we get a kind of inspiration and we learn from such things, and हमें आगे जाने में, अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए we get so many good things from interviews, so that this becomes a guiding light, है ना, lighthouse for us to move ahead in life. So that's why interviews should be read, watched on YouTube. You know, today it's the world of communication, so you have every medium of communication at your under your fingertips, so you can watch the interviews, right? है ना? तो इन लोगों के बारे में go to YouTube, search some of the great interviews and learn from them. And then, yes, again very important, now we have gone through all these things. I hope you will be able to respond to these questions now, है ना? Of Lewis Carroll, what were his opinion about interviews. I hope you will be able to respond to that now. Rudyard Kipling through his wife Caroline, so what were his words? Saul Bellow, V.S. Naipaul, okay, all these things we have come to know. Now we will go to some of the questions I'll be asking you. Oh yes, fine, बहुत ही आराम से, अच्छे से एक पेन और एक कॉपी सामने रखिए। फाइन, तो मैं चंद क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज? पॉजिटिव व्यूज क्या थी इस व्हेन यू रेड दिस चैप्टर, पार्ट 1 ऑफ द इंटरव्यू, है ना, द इंटरव्यू। तो व्हाट आर सम ऑफ द जो पॉजिटिव व्यूज आपको मिली, वो क्या है? यस, गुड 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 गुड, एवरीबॉडी इज ट्राइंग, यस, नोट देम डाउन। ओके, आई होप कि आपने लिखा होगा, जैसे कि इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यस, बहुत अच्छा लिखने, कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है, इट्स अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। वेरी गुड, यस, कुछ ने ये भी लिखा, इट्स अ नॉट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दैट्स गुड, है ना। तो यस, वी नो अबाउट द ग्रेट सेलिब्रिटीज थ्रू इंटरव्यूज। यस, वेरी गुड, दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स, दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स। व्हाई डू मोस्ट celebrity writers despise being interviewed? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आई थिंक इन होल ऑफ दिस वेरी स्टोरी में हमने इसी बात पे ज़्यादा डिस्कस किया कि यार ये जो बहुत सारे मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं, ये नफरत क्यों करते थे इंटरव्यूज़ के साथ। तो क्या क्या है? यस, हाँ, ट्राई कीजिए, लिखिए लिखिए, ग्रेट, हाँ, पॉइंट डाउन, यस, फाइन, एक्सलेंट, आप ट्राई कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मुझे लग रहा है आपने शायद लिखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ने ये समझा कि ये अनवारंटेड जो इंट्रूजन है इन आवर लाइफ, तो हमारी लाइफ में गैर ज़रूरी मुदाखलत है, ये कुछ की ये जो थी ओपिनियन। सम फील डिमिनिश्ड, बिलिटल, डिसरेस्पेक्ट उनको महसूस होता है इंटरव्यू से, है ना। कुछ का ये है कि दे फील वॉन्डेड, जख्मी होते हैं हम, है ना। कुछ इवन गो टू दिस एक्सटेंट दैट वी लूज अ पार्ट ऑफ आवर सेल्व्स, हम खो जाते हैं, अपनी शख्सियत हमारी ख़राब होती है आफ्टर एन इंटरव्यू। एंड कुछ के ये भी ख्याल थे कि इट्स इमोरल, या बहुत सही आपने लिखा, इट्स क्राइम,
यस, एंड कुछ का ये भी ख्याल है इट्स अनवांटेड, दे डोंट वेलकम इट, इट्स अनवेलकम इंटरप्शन इन वंस लाइफ। तो ये पर्सनल लाइफ में ये सारी चीज़ें नेगेटिव्स या कुछ राइटर्स सेलिब्रिटीज़ के ये आइडियाज़ थे इंटरव्यूज़ के बारे में। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। तो कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में फोटोग्राफ्स के बारे में, फोटोग्राफ लेना, जैसे आज तो बड़ा काम ही सेल्फी एवरीवेयर है, तो कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स का ये ख्याल है कि बड़ा ही उनका एक व्यू था। तो व्हाट वाज दैट? आपने लेसन में अभी पढ़ा। अगर मैं आपसे इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, कैन यू रेस्पॉन्ड टू दैट? हाँ, यस, गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, यस, आपने यही लिखा होगा ना, क्या? स्टीलिंग द पर्सन सोल एंड डिमिनिशिंग देम। यस, इससे लगता है कि आपने उसका सोल ही, रूह ही उसे छीन लिया अगर आपने फोटोग्राफ लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये ही प्रिमिटिव जो कल्चर्स थे, सिटीज थी, उनका ये रेस्पॉन्स था इस इंटरव्यू में जो मेंशन है, इट हैज बीन मेंशन्ड देयर। नाउ एक और एक्सप्रेशन, इट वाज रिटन बाय वन ऑफ द राइटर्स। ही सेज दैट इट इज अ thumbprint on one's windpipe. What do you understand by this expression? Thumbprint on one's windpipe can be asked in an examination. बताइए। Yes, Saul Bellow once said it. उसी ने ये रिमार्क, आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसको, उसकी अभी हमने जो पढ़ा, Saul Bellow said this. हाँ हाँ, so that means for him, हाँ, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, yes, painful experience, yes, definitely. तो इंटरव्यू उसके लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस थी। सो दैट मीन्स इट इज काइंड ऑफ स्क्यूजिंग, जैसे आपको गला दबा रहे हो किसी का, अगर आप उसका उसके ऊपर वो इंडेलिबल मार्क्स पड़ रहे हैं उसके गले पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है ना। इवन हम ये भी समझ सकते हैं कि इट ऑल्सो मीन्स दैट व्हेन द इंटरव्यूअर फोर्सेस पर्सनल डिटेल्स फ्रॉम हिज इंटरव्यू, वी इट बिकम्स अनडिजायरेबल एंड क्रूअल। यानी कि आप फोर्स अपने इंटरव्यूअर अपने क्वेश्चन से फोर्स करता है कि नहीं 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 आप इस पे बात कीजिए, तो फील कैसे होता है? उस वक्त आप अनडिजायरेबल फील करते हो, अब आपको अच्छा नहीं लगता, एंड यू एक्चुअली वांट दैट आई वोंट डू इट अगेन। नाउ अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इन टुडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के दुनिया में चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन है? हु इन टुडेज वर्ल्ड इन आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। तो हाँ, ये क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा, नहीं आपने लिखा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। द इंटरव्यू इज द चीफ, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है वही चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, राइट? So our most vivid impressions, very clear impressions of our contemporaries are based on communication that come from them. Thus, interviewers hold a position of power and influence. तो उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक क्वेश्चन दिया है, उसको आप घर में कीजिए, मैं इसको बस पढ़ूंगा, तो आप इसको घर में कीजिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम ब्रेक लेंगे, राइट? लेकिन उससे पहले ये आपको ये क्वेश्चन पहले मैं आपको बोल देता हूं, उसके बाद हम लेंगे एक ब्रेक, राइट? ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है इसी लेसन से। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. आप अगर इस बुक के पेज नंबर 69 पे जाएंगे, वहां पे H.G. Wells ने ये लाइन्स कही है, ये इसी से मैंने लिया है ये 3-4 लाइन्स। तो ये क्वेश्चंस आप लिख दीजिए, ये मैंने क्वेश्चंस इसके लिए रखे हैं, तो ये आप क्वेश्चंस लिख दीजिए, तो आप फिर इनका रेस्पॉन्स कीजिए। यहां पर भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कीजिए, आप इनको लिखें, राइट? आप इनको लिखें जरा, हाँ बिल्कुल आप इनको लिखें। ओके, मैं बताता भी हूं, लेट मी टेल यू। तो पहला क्वेश्चन है, जोसेफ स्टालिन इंटरव्यूड H.G. Wells, ट्रू और फॉल्स? फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स अ पर्सन हु इज बीइंग इंटरव्यूड। हाउ लॉन्ग आफ्टर 1894 डिड वेल्स इंटरव्यूड जोसेफ स्टालिन? इसी में लिखा हुआ है। डिस्पाइट गिविंग सेवरल इंटरव्यूज, Wells referred to the process as the interviewing dash.
इसके आंसर्स भी चाहिए, बिल्कुल इसी पैसेज है, वन वर्ड के आंसर्स है। यस, वेरी गुड। अब ये 4 क्वेश्चन घर में कीजिए और आराम से बैठिए। नंबर 1, व्हाट आर द ओपिनियंस ऑफ सम ऑफ द सेलिब्रिटीज ऑन इंटरव्यूज? हाउ डू सेलिब्रिटी राइटर्स despise being interviewed as given in the interview? How are interviews despite their drawbacks useful? How were Rudyard Kipling and H.G. Wells critical of interviews, yet they indulged in interviewing others? ये थे 4 क्वेश्चंस। आराम से बैठिए, लिखिए, कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आप ऐसा कीजिए, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यहां पे मैं अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल, शेख गुलजार 1970@gmail.com। और इस लेसन के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो, आप मुझे पूछ सकते हैं इस ईमेल आईडी के थ्रू।